Now there's a wall collapse in Lucknow's Dilkhush area due to heavy rainfall. 9 people have died and 2 have been injured. This is the breaking news we are getting to you from Lucknow at this point in time. A mishap has taken place, and to give us more information on this, I'm being joined by my colleague Pranshu on the phone line. Pranshu, what happened? What led to this mishap? Well, Vinaya, there has been incessant rain across many districts of Uttar Pradesh, including Lucknow, for past more than 24 hours, and that's the reason why all school and colleges in this entire region, including Lucknow, have also been closed. Now, this was an under construction wall that was being built in Dilkusha area, which is in the Lucknow cantonment area. And this was an under construction wall. These laborers were taking refuge or shade by this wall. And then at around 3 a.m. this morning, the wall collapsed, as I said, because of the continued heavy rainfall. The landslide happened, and then this wall collapsed, and thereby around 11 to 12 people were crushed under the debris. 9 laborers have been confirmed dead on being brought to the hospital. 2 others have sustained injuries. So that's an unfortunate incident which has happened. Authorities have said that, that was not a place where people should have been, trying to take shelter. But unfortunately, these poor people, without having any, accommodation here in Lucknow, they had taken shelter there. And unfortunately, during that period in time, this wall collapsed, claiming 9 precious lives. Pranchu, what are the local authorities telling you? Could this mishap been averted? What led to it? Well, see, all investigations are underway, and senior officials have reached there. Prima facie, what we have picked up is that there was this wall being constructed. There is also a colony there known as the Dilkusha colony, which is housed by senior bureaucrats, army officers, and also, the people from other walks of life. This wall was being constructed as a sort of a fencing between the forest area belonging to the cantonment board as well as the colony. And there was no reason why people should have been there, because it's not a place where you actually stay or even you put up the shanties or the jhopar-pattis. But it seems that because of the rain, these people who were probably working at some construction site nearby had taken refuge here, not imagining that the wall will actually collapse. But since it has been raining for past more than 24 hours, the soil there was probably loose, which led to this under construction wall caving in. Almost 50-meter area of this wall caved in, and the people who became victim were immediately caught below the debris, and that's the reason why 9 lives were lost and 2 other people have sustained injuries. Well, thank you for the information, Pranshu. I'm also being joined by my colleague Amit Singh from Dilkusha. He's joining us on the phone line. He's live at Dilkusha right now. Amit Singh, आप वहाँ पे हैं? आप हमें बताइए कैसा क्या दिख रहा है आसपास? क्या अभी राहत कार्य शुरू है? देखिए, राहत कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर बीती रात 3 बजे के आसपास दीवार ढह गया, जिसमें 9 की मौत हुई है। जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? जी, आ रही है आपकी आवाज। क्या आप हमें दिखा पाएंगे कि आसपास अभी क्या है? राहत कार्य चल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बीती रात 3 बजे के आसपास यहां पर दीवार ढह गई, जिसमें 9 की मौत हुई है, 2 घायल बताया जा रहा है और राहत कार्य कंप्लीट हो चुका है। चूंकि ये बीती रात 3 बजे का ये वाकया है। 3 बजे यहां पर दीवार गिरी है। भारी बारिश हो रही थी लखनऊ में और उसी बारिश की वजह से इस दीवार को नुकसान पहुंचा और जिसके बाद बीती रात 3 बजे के आसपास ये दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें 9 लोग दबे हुए थे। दरअसल दीवार के से ठीक बगल में झोपड़ी में 9 लोग रह रहे थे, जिसमें 2 बच्चे, 3 महिलाएं समेत कुल 9 लोग हैं। 2 घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस स्पॉट पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अस्पताल में 9 लोगों को मृत घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। और जो मेरे पीछे आप ये झोपड़ी देख पा रहे हैं, ठीक इसी तरीके की झोपड़ी में ये 9 लोग रह रहे थे यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की
है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, ऐसे में सभी अगर बहुत जरूरी घर से निकलना नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा लखनऊ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मंडलायुक्त हों या फिर डीएम हो, वो सभी इस वक्त सड़क पर है। एलडीए को निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं वो ऑन फील्ड रहें ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि कई जगह जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरीके से ये बड़ी दीवार थी जो जिसे बारिश की वजह से नुकसान हुआ और उसके बाद ये भरभरा कर गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। और फिलहाल कई जगहों पर सड़क पे गड्ढा भी हुआ है। बीडी मार्ग की अगर हम बात करें तो बीडी मार्ग पर एक बड़ा गड्ढा वहां पर हुआ है भारी बारिश की वजह से। तो इस तरीके से नुकसान, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी लखनऊ में देखी जा सकती है। पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी बारिश यहाँ पर बंद हुई है, लेकिन वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अभी बारिश इसी तरीके से होने की संभावना है। अगले कुछ घंटों में इसी तरीके से बारिश होने की संभावना है यहाँ पर। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो झोपड़ी बनाई गई थी दीवार ढहने के बाद, ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इसी तरीके के झोपड़ी में ये लोग रह रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को और प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चंद घंटों के अंदर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन दुखद बात कि 9 की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जी। और अमित जी, आप बता सकते हैं कि ये वॉल जो है ये एक इलीगल स्ट्रक्चर था? देखिए, ये जो वॉल है, मैं आपको सबसे पहले तो दिखाऊं, ये जो वॉल है ये इलीगल स्ट्रक्चर नहीं था, ये अवैध निर्माण नहीं था। ये वॉल यहाँ पर खड़ा किया गया था। ये काफ़ी यहाँ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं इस इलाके में। तो कैंट का एरिया ये कहा जाता है, ये कैंट का एरिया है और यहाँ पर ये अवैध निर्माण नहीं था। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हुई और यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ की बहुत दलदली सी है। भारी बारिश की वजह से मिट्टी दलदली हुई, पानी रिसता हुआ नीचे पहुंचा, जिसके बाद दीवार को नुकसान पहुंचा है और उसके बाद दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। एक बार इस कॉलोनी की जरा तस्वीरें दिखाइए निजाम अंसारी जरा। यहाँ पर ये कैंट का एरिया है ये, और यहाँ पर सरकारी अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इलीगल वॉल नहीं था यहाँ पर, लेकिन हाँ बारिश की वजह से दीवार को नुकसान पहुंचा है और उसका खामियाजा जो है यहाँ पर जो रह रहे थे, जो परिवार रह रहे थे, कई परिवार अपने उनको नुकसान पहुंचा। 9 की मौत हुई है, 2 बच्चे 3 महिलाएं समेत कुल 9 की मौत हुई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत स्पॉट पे पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और तुरंत उनको अस्पताल लेकर जाया गया। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले की जानकारी शासन को दी गई। शासन जब यहाँ पर शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले की जानकारी दी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में दुख जताते हुए संज्ञान लिया और 4 लाख रुपया मृतकों को देने का घोषणा की है। जी Amit ji, thank you so much for showing us those visuals and for giving us those details. But for right now,